welcome to Podscotch. You guys must be wondering who am I, so let me give a brief introduction of myself. I'm Sumbal Ali and we would be having a chit chat about social media. Social media has become such an important part of our lives कि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है. We cannot imagine our life without it. But as it has so many advantages, it does come with disadvantages which people don't want to talk about. It is affecting our life very badly. So today we would be having a conversation about it, and I have a very professional and a famous psychologist and motivational speaker with me, Miss Rabia. Hello, Miss Rabia. Hello, Sumbal. How are you, ma'am? I am good. Okay. So, Miss Rabia, what do you think when you heard the word of cyberbullying? Cyberbullying is basically when you bully somebody using the social media platforms by which you can write any sort of words that are intended to demean the other person or to bring them down. That comes in the category of, in the definition of cyberbullying. So, like, how would you describe, from where does it start? Does it start from smaller platforms, or how would you like to explain it? I think quite often people cyberbully others in the form of jokes. They think they're joking about the other person, but they pass such comments that are offensive. So that is basically cyberbullying. Like, as you are a psychologist, आपको क्या देखते हैं पूरे दिन में आपके पास? How many cases you see कि हाँ, that person is going through something like that? बहुत सारे. Honestly, जो हमारी टीनेज और 13 to 19 वाला जो टेन्योर होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग होते हैं, स्पेशली स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटीज़ में. साइबर बुलिंग एज वेल एज अदर सॉर्ट्स ऑफ बुलिंग्स, बट साइबर बुलिंग में फिर इट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ बुलिंग बिकॉज द अदर पर्सन may or may not reveal their identity. People hide their real identities behind fake usernames, and it's very easy to get away with it. You can say anything to the other person and just get away with it. Nobody will question you, and you're not answerable. So I think that is the worst form of bullying, because आपको पता भी नहीं होता कि कौन आपको, कि आपकी कही हुई एक बात अगले इंसान के ऊपर कितना बुरा अफेक्ट कर रही है. Exactly. So those who don't know what cyberbullying is, it's an online harassment जो कि there are some embarrassing photos जो कि that which are not embarrassing for you, but they could make them embarrassing. Someone can harass you online. This is basically, whenever you feel like you are facing it, you should contact someone. What would you like to say about this, Ms. Rabia? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले parents should realize this. एक तो awareness, we should work in our space to increase awareness, to raise awareness about cyberbullying. Parents should know that when their child goes quiet, when their results are coming down without any reason, so there is some reason behind it. आपको नहीं पता होता, लेकिन आपका बच्चा आपसे कुछ छुपा रहा है, शायद वो इतना confident नहीं है, शायद वो आपके साथ भी इतना comfortable नहीं है to speak about it. Because usually हमें जब कोई इस तरह कि कुछ होता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम छुपाएं, बजाय इसके कि हम उसको रिपोर्ट करें या बताएं. अब तो पाकिस्तान में पीका एक्ट है, हमारे पास मददगार है, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्पलाइंस हैं जिसके ऊपर आप रिपोर्ट करें, तो अब एक्चुअली एक्शन लिया जाता है, बजाय इसके कि पहले ये होता था कि आप किसी को बताते थे तो चीज़ें उल्टा आपके लिए मज़ीद ख़राब हो जाती थी. बट आई फील लाइक पाकिस्तान में अभी भी ये एक बैरियर है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के दे डोंट एक्सप्रेस देयर सेल्फ टू देयर पेरेंट्स. दे डोंट लाइक टू, दे वुड थिंक कि नहीं, अच्छा अगर बता दिया तो ये हम पे मुसीबत पड़ जाएगी. बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से यहीं पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जितना एक पेरेंट, मदर और फादर अपने एक बच्चे को जानते हैं, उतना कोई भी नहीं जानता. जितनी जल्दी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे बच्चे में देयर इज़ समथिंग, मतलब जिसकी वजह से वो परेशान है या वो खामोश है, तो वो अगर जितनी जल्दी पॉइंट आउट कर लें, उसको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वट एवर हैपन्स यू कैन कम एंड टॉक टू अस, क्रिएट द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर चिल्ड्रन, ताकि वो इस जनरेशन गैप को निकाल के वो आपसे हर बात अपनी शेयर कर सकें. बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान वी डू हैव दिस बैरियर. मेरे ख्याल से इट डज कॉज एंजाइटी एंड डिप्रेशन. यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, सो यू कुड डिफाइन इट बेटर. व्हाट साइड इफेक्ट्स इट्स हैविंग ऑन चिल्ड्रन? यू राइट. साइबर बुलिंग एक इस तरह की एक चीज़ बन गई है कि वो आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है. इट लीड्स टू एंजाइटी, इट लीड्स टू डिप्रेशन, इट इवन लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स. सुसाइडल केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो जिनकी वजह ये है कि लोगों ने उनको बुली किया, इतनी ज़्यादा डिमीनिंग रिमार्क्स उनको पास किए हैं कि वो आप के बर्दाश्त से बाहर होते हैं, दे आर बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन. तो फिर दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू द वर्स्ट सिनेरियोज. अगर किसी राइट टाइम पे आपको नहीं रोका गया या आपकी हेल्प नहीं की गई, तो फिर ऑटोमेटिकली एक बच्चा, पहले इतनी मासूम जहनियत होती है उसकी, तो वो फिर मजीद उसके अंदर जाता है. और मेरे ख्याल से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये चीज़ ज़्यादा रादर देन इन यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे आपके लिए वो पेजेस, कन्फेशन पेजेस बना दिए जाते हैं एंड दे डू दैट. तो आई गेस वो चीज़ बहुत अफेक्ट करती है. हैव यू एवर फेस
फेस अ केस लाइक दैट कि जिसमें आपका मतलब पेशेंट इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा हो? बिल्कुल सही। ये कन्फेशन पेजेस का जो आपने कहा, ये तो मेरे ख्याल से सबसे बुरी चीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो अवेलेबल है वो ये है, क्योंकि और वो ही एक बच्चा था हमारे पास, ही वाज 15 और 14 ईयर्स ओल्ड, वो आया था हमारे पास एंड ही वाज अ लिटिल ओबीज। वो थोड़ा सा हेल्दी था और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इस तरह के रिमार्क्स मिलते थे। और यूजुअली मतलब जनरली भी आपको फील नहीं होता, आप किसी के बारे में कमेंट पास कर देते हैं कि वो मोटे हो गए हो, अब तुम्हारी ये स्किन नहीं अच्छी, ये चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब यू पॉइंट आउट द फ्लॉज इन द अदर पर्सन, और वो इंसान जानता होता है कि वो उसके ऊपर उस चीज़ की वजह से क्या गुजर रहा है। तो दैट किड वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ों से गुजर रहा था, और उसके स्कूल के नाम से एक फेसबुक पे पेज बना हुआ था जिसमें पीपल कुड सेंड इन देयर कन्फेशंस एनोनिमसली। अब वो उसमें कुछ, जिसे हमको पता है स्कूल लेवल पे क्रश, इस पे मेरा क्रश है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, और वहीं पे इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि जहाँ पे अगले बंदे का मजाक उड़ाना, और वो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। तो वो बच्चा इतना ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हुआ था कि वो फिर उसकी भी यही सुसाइडल थाट्स, इट लेड टू सुसाइडल थाट्स, और मतलब अल्टीमेटली तो वो बहुत ज़्यादा सुअर इस तरह की, एंड इस तरह के केसेस हर रोज़ आते हैं आपके पास, हर रोज़। What do you think of a first word came into your mind जब आप cyberbullying का word सुनती हैं? मेरे ख्याल से इट नीड्स टू स्टॉप इमीडिएटली, इसको रोकना चाहिए, और आपको अपनी कैपेसिटी में जितना आप कर सकते हैं, इवन इफ इट इज़ रेजिंग अवेयरनेस, आप वो करें, आप लोगों को बताएं कि इसको, और जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनको भी इस चीज़ से उनको बताना चाहिए कि दैट इज़, आपको पता भी नहीं है कि इस चीज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है, उनको लगता है कि दैट इज़ जस्ट यू बीइंग कूल, व्हिच इज़ नॉट द रियलिटी। So I guess कि हमारी सोसाइटी में ना स्टैंडर्ड सेट कर दी गए, और वेन एवर दैट पर्सन वेदर ही और शी डज नॉट उस स्टैंडर्ड्स पे वो नहीं उतरता, डज नॉट रिक्वायर्ड कि अच्छा हाँ वो ये करे, तो दैट पर्सन गेट्स बुलीड, नो मैटर वेदर इट्स इन फिजिकल और या साइबर। आई गेस कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है वेयर पीपल कैन जस्ट say whatever they want to without feeling like what effect it would have on others. ट्रू, वही ना कीबोर्ड वॉरियर्स वाली एक चीज़ आ गई। अब तो सेलिब्रिटीज़ को इतनी ज़्यादा हेटफुल कमेंट्स मिलते हैं, मतलब एक्सेसिबिलिटी आ गई है ना आपके, ऑन योर फिंगर टिप्स, यू कैन से एनीथिंग विदाउट एनीबडी आस्किंग यू, और यू नॉट आंसरेबल फॉर दैट। सो आपके लिए बहुत आसान हो गया, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। मेरे ख्याल से व्हाट डू यू थिंक कि लाइक ऐसी कैंपेन्स रन होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि वी शुड ब्रिंग अप दिस इशू, कि दिस इशू एग्जिस्ट, नो मैटर वो कोई सेलिब्रिटी है, नो मैटर शी और ही इज़ अ टीनेजर या कोई छोटा बच्चा भी, अगर समवन इज़ ट्राइंग टू बुली हर और हिम ऑन ऑनलाइन, आई गेस उस कमेंट को उसी वक्त या उस पेज को उसी वक्त रिपोर्ट करना चाहिए। राइट। असल में मुझे लगता है कि अवेयरनेस वही सोशल मीडिया के, जहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ायदे भी तो हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस मिले तो आप साइबर बुलिंग की ही उधर आप अवेयरनेस इंक्रीज़ करें, आप छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। अगर हम एक भी ऐसा केस जहाँ पे एक इंसान वाकई इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है साइबर बुलिंग से, अगर हम उसकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री या एक शॉर्ट फिल्म बना के उसको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाएं, तो मेरे ख्याल से इतना इनसेंसिटिव कोई नहीं होता। अगर आप खुद भी करते भी हैं तो आप एक दफ़ा सोचेंगे ज़रूर कि कहीं मेरी वजह से तो कोई इंसान इस चीज़ से नहीं गुजर रहा, तो फिर आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि आप जहाँ गलत हैं आप वो वहीं पे रुक जाएं। मगर मतलब nobody even take initiative for it. We are living in 2023, but I haven't seen any campaign, any awareness program जो कि स्पेशली साइबर बुलिंग को टारगेट कर रही हो। अच्छा, अब ना चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, जितना मतलब आई नो ऑफ, काफ़ी मेंटल हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट की टीम्स ने, मेंटल हेल्थ वर्कर्स ने इस चीज़ को अब थोड़ा सा कैटर करने की कोशिश की है। स्कूल्स में भी अब मैंने सेमिनार्स देखे हैं, आई कैन नॉट नेम स्कूल्स बट आई नो ऑफ सच स्कूल्स जहाँ पे अब अवेयरनेस आ रही है, जहाँ पे छोटे लेवल पे क्लास 1-2 से लेकर बच्चों को इस चीज़ के ऊपर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नहीं किया जा रहा है। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि सोशल मीडिया पे लाइक वहाँ पे यही है ना कि सोशल मीडिया इज द ब्यूटीफुल पिक्चर, वी कैन नॉट अनरिवील the ugly side of it. Yes, ugly side of it, but unfortunately it is affecting us in a way. It is affecting teenagers, the generation Z. It is basically targeting it and affecting it. I guess बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कि साइबर बुलिंग को फेस कर रही हैं, बट दे आर नॉट एबल टू टेल टू देयर पेरेंट्स और एनीवन जस्ट बिकॉज कि वो आ जाती है, लड़की है, घर की इज्जत है। सो आई गेस इस पे I don't know, this is my perspective, what is your perspective? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लड़कियों को तो खास तौर पे चुप करा दिया जाता है ना, कि मतलब अगर कुछ
गॉड फॉरबिड ऐसा हुआ भी है तो आपने तो बोलना ही नहीं है इस बारे में, वो मजीद बल्कि आपके ऊपर कीचड़ उछालने वाली चीज़ें आ जाएंगी और आपको मजीद उसके ऊपर पॉइंट आउट किया जाएगा। तो वही आई वुड रिपीट कि पेरेंट्स के साथ अगर आपका कंफर्ट लेवल होगा तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत निगलेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में बेटियों को स्पेशली इस चीज़ पे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। नो मैटर आई गेस कोई चलो इनोसेंस में किसी ने अपनी कुछ पिक्चर लगाई या कुछ, गॉड फॉरबिड दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू इट, मगर वो चुप रहेगी, वो नहीं लेगी, और अगर वो स्टेप लेगी ही तो पीपल विल बी थ्रोइंग डर्ट ऑन हर लाइक के अच्छा ये तो लड़की ही ऐसी थी, ये तो आई गेस फिर से कपड़ों पे बात आ जाएगी और फिर उसके माइंडसेट की बात आ जाएगी। इट्स आई गेस इट्स नॉट व्हाट दे सी। एक टाइम पे इन चीज़ों को साइड पे रख के व्हाट शी और ही इज गोइंग थ्रू देखना ज़रूरी होता है। अच्छा, समथिंग लाइक दिस हैपन टू अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। उसकी किसी ने पिक्चर्स एडिट करके इसी तरह फेसबुक के किसी रैंडम पेज पे लगाई। शी वाज सो स्केयर्ड टू टेल हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। देन शी टोल्ड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी मदर शी वाज वर्किंग इन FPR एंड देन शी रिपोर्टेड इट टू द अथॉरिटीज एंड दैट पेज ऑटोमेटिकली गॉट रिमूव्ड। बट द पॉइंट इज कि आप जब तक रिपोर्ट नहीं ना करेंगे, जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे उतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मतलब वो आपके ऊपर ओवरकम करेंगी। यू शुड रिपोर्ट, यू शुड स्पीक अबाउट इट, वी शुड टेक इनिशिएटिव अबाउट Yes. इट। और अगर ऐसा होता है वी शुडंट बी अफ्रेड वेदर वो कोई लड़की हो या लड़का, इस चीज इस डिस्क्रिमिनेशन के बियॉन्ड इस चीज को देखना चाहिए कि दिस थिंग इज रॉन्ग एंड द पर्सन हु ही इज डूइंग दैट उसको खुद होना चाहिए कि आई डोंट थिंक सो दे हैव हार्ट, आई डोंट थिंक सो दे हैव Yes. फीलिंग्स हूएवर इज डूइंग दिस। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन वही बात है कि अब बोलना आपको बोलना पड़ेगा अपने लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी एक ज़िंदगी के लिए आपको बोलना पड़ेगा और एक्शन लिया जाता है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन सच केसेस जिसमें एक्शन लिया जाता है। That's true, मगर आई फील लाइक ये चीज़ टीनेजर्स में अभी सबसे ज़्यादा है रादर देन के मतलब छोटे बच्चों का तो चलो अभी इतना कोई, मगर अपेरेंटली अब 11 साल के बच्चे के पास भी फेसबुक और इंस्टाग्राम उसके पास एक्सेस है। मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को टू एन एज लिमिट कर देना चाहिए कि जहाँ वो अपने बच्चों को इस एज तक एक्सेस ना दे सोशल मीडिया का, सो दैट कैन बी द वन वे, बिकॉज यू हैव बेबी माइंड व्हेन यू स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, यू डोंट नो द इनसाइड्स ऑफ इट, यू डोंट नो द व्हाट, बिकॉज आपका डाटा रहता है नो मैटर व्हाट, आप जितना मर्जी डिलीट कर लो। आई थिंक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनवाने से पहले आपको बच्चों को एजुकेट करना चाहिए अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इट। उसको आप उस बच्चे को भी एजुकेट करें कि वो एक स्पेस में जा रहा है तो वो भी अगले लोगों के लिए भी उस स्पेस को एक हेल्दी वे में यूज़ करे, ना वो किसी के लिए बाइस से तकलीफ बने। और ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि जब उसके अगेंस्ट इस तरह की कोई बात आती है तो वो उस चीज़ पे बोले, बात करे और बताए, उसको रिपोर्ट करे इंस्टेड ऑफ सेइंग साइलेंट अबाउट इट। I guess people should think twice by doing such things. मेरे ख्याल में अगर कोई स्टेप ले भी रहा है तो सोसाइटी को उसको सपोर्ट करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन आवर सोसाइटी इज नॉट डिजाइन दैट वे, इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड दैट वे। घर वाले सपोर्ट कर भी रहे होंगे तो मेरे ख्याल से खानदान वाले उठेंगे अरे भाई इसकी तो लड़की ही ऐसी है, इसका तो लड़का ही ऐसा है, सो आई गेस वो उसके फिर कैरेक्टर पे आ जाती है बात। लेकिन वही बात है कि वी आर सोसाइटी, हम अपने आप को ठीक करेंगे तो हमें देख के एक इंसान ठीक होगा, फिर उसको देख के एक इंसान ठीक होगा, ऑटोमेटिकली एक बड़ा चेंज आएगा। बट द फर्स्ट स्टेप इज कि हम खुद तो एक्शन लेना शुरू करें। मिस रबिया, आप क्या सजेस्ट करती हैं द पीपल हु आर फेसिंग साइबर बुलिंग, व्हाट स्टेप दे शुड टेक? मैं जिस तरह से आपको बता रही थी कि अब इस तरह की हेल्पलाइंस आ गई हैं, अब मददगार है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब इजी हो गया। अब आपको आप गूगल करें, आपके सामने 6-7 हेल्पलाइंस इस तरह की आ जाएंगी जहाँ पे यू कैन रिपोर्ट इट, और आपकी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ये नहीं है कि वो आपको भी रिवील कर देंगे और आपकी चीज़ें मजीद ख़राब हों। वो बहुत तरीके से इन अ वेरी प्रोफेशनल वे दे हैंडल सच थिंग्स, और बहुत आराम से, मतलब इट वॉन्ट टेक अ मिनट, उनके लिए बहुत ईजी। बस ये है कि आप एटलीस्ट रिपोर्ट, वही बात है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमें लगता है कि बस इसको चुप करना है और इसको छुपाना है, किसी को पता ना चले। हालांकि यू शुड बी द वन, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। दैट इज द पर्सन हु नीड्स टू बी आंसरेबल फॉर दिस वट एवर ही इज डूइंग टू डिमीन यू। तो आप उसको रिपोर्ट करें सो दैट उसको भी एक लेसन मिले और ही स्टॉप्स डूइंग दैट। So Ms. Rabia, what do you think when you thought, जब आपको फेसबुक के बारे में पूछा जाता है, what do you think about it? फेसबुक इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत आसानी से आप फेक अकाउंट्स बना लेते हैं और नेगेटिव कमेंट्स किसी के बारे में भी जितनी मर्जी देना चाहें। इंस्टाग्राम में आप लोगों के फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर अगलों को जज करते हैं और आप फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बुली करते हैं। टिकटॉक टिकटॉक इज़ अ मेस। स्नैपचैट
स्नैपचैट में मैसेजेस आपके 24 आवर्स में गायब हैं, आप जो मर्जी कह लें और आप बस. So true. Thank you so much, Ms. Rabia. It was such a useful discussion. It was a very good discussion I had with you. I hope this helped you guys. So please remember, whenever you face cyberbullying, do report it. It's necessary. You shouldn't be staying quiet because of it. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Until next episode.